Good evening, all of you. So this is your first class for PSIR optional. ठीक है, एक बार before discussing what is PSIR optional, though we have discussed about PSIR optional earlier also, but now from the point of view कि हम लोग को optional समझना है और हम उसकी introduction शुरू करते हैं. So with this as a PSIR optional में कुछ चीज़ें मैं बहुत पहले ही clear करना चाहता हूँ. I want to make things very clear at the initial stage only. क्योंकि जब भी हम political thinkers को पढ़ते हैं, okay, जब भी हम जब भी हम political thinkers को when we try to उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं, so first thing in the mind should be we should not have any preconceived notions. ठीक है, कुछ हमको दिमाग में पहले से नहीं रखना है. The subject is very simple. Don't worry. Initial 1 month, 2 months, 3 months will be difficult. I'm telling you it will be difficult because कभी हमको उस तरीके से सोचने की आदत नहीं है. हमने कभी सोचा ही नहीं आज के मतलब हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि what is truth. कभी सोचा है सच क्या होता है? छोटी सी बात है. What is reality? चलो छोटा सा डिस्कशन. What is truth? अगर हम इसमें let's discuss on this aspect only. कि what is truth? सच है क्या? Is it something which हाँ? जो आंखों के सामने होता है. Okay, so truth is something which we can see straight on the वो वही सच है हमारे लिए, right? But कल को वो नहीं रहेगा. जहाँ तक मैं अपने आर्ग्यूमेंट देने की कोशिश करूँगा. Remember, always in political science you have to give your counter arguments. Not in political science, because if you want knowledge, if you want wisdom, slowly we will see all these words. If you actually want knowledge, आपको reasoning को, दिमाग को, हमारे और जानवरों के बीच में कुछ तो अंतर है ना. We can speak, we can think. So thinking की जो ability है, that is very special to human beings. और अगर हम वो think करके rationally we can't speak out, तो it doesn't make any sense. So first thing first, we have to be spoken in class. गलत सही की चिंता छोड़ दो. हम यहाँ मैं तुमको 2 महीने 3 महीने 4 महीने तक जज ही नहीं करने वाला. Okay? So neither we will try to write any answers in this initially. ठीक है? ऐसा नहीं है कि आज हमने सीखा हम आंसर लिखना शुरू करते हैं. No, that is not our part initially. First we have to understand it, क्योंकि हमको 2 + 2 4 करने की आदत है और यहाँ 2 + 2 4 है नहीं. ठीक है निधि? So and for that matter in any of the subjects. So let's start with हम लोग we were discussing about what is truth. So what do you understand? First answer which I got is truth is what we see. But my counter argument to this is कि जो हम देख रहे हैं वो अगर नहीं रहेगा तो is it truth for me is something which has to be same for everybody. भगवान दिखते हैं? Can you see God? Is God truth? So first argument में ही आप लोग ये हो गए. करेक्ट? तो ऐसे आपको इस तरीके के आर्गुमेंट बहुत मिलेंगे. मैं आपके दिमागों को अभी मेरे को बहुत ज़्यादा खोलना है. मतलब आप इतनी नेव स्टेज में हैं. We are at such a naive stage because nobody has invigorated our minds to this level. Okay? So now this is the opportunity I am telling you कि to get your minds invigorated at such a high ass level कि आपका दिमाग initially you will feel like कि मैं पागल हो रहा हूँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा. Right? But then once you will start learning this optional, I will not say optional only because here you will learn about philosophy. Okay? Here we will learn about political theories, different political theories. How do state run? हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा important क्या चीज़ है? What is the most important aspect of your life? Is it the material world which we see right here, or is it something else? हमारी जो आत्मा है वो किससे ड्रिवन होती है? आत्मा किससे ड्राइव हो रही है? सोल किससे ड्राइव हो रही है? बहुत ऐसे क्वेश्चंस में अब इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. ठीक है? और मैं एक बार फिर रिपीट माय सेम थिंग्स अगेन. डोंट गेट फ्राइटेंड. 2 महीने 4 महीने जब तक आप until and unless we reach to a level
we start understanding the things. Okay, and don't ever try to reach to a conclusion. ठीक है, because there are always perceptions, there are not, ऐसा नहीं है कि मतलब यही सच है, but continuously we have to strive for the truth. Okay, so truth पे हमेशा याद रखना कि नॉलेज को अगर हमें बढ़ाना है तो मेरा एक सच होगा, आपका एक सच होगा. According to you there is something which is truth, according to me there is something which is truth. So both of us will speak out. मैं भी कुछ बोलूँगा, आप भी कुछ बोलो. हो सकता है आपके आर्ग्यूमेंट्स में दम हो. Yes. What happened Zoya? ट्रेन तो टाइम से ही होगी. चलो. Okay. So there is truth are different for each and every person. So वो एक्चुअल में क्या ट्रुथ है, क्या हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हम देखेंगे. हमारे जीवन जीने का मतलब क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ. हैव एनीवन ऑफ यू थॉट कि मेरे व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ, वेरी लाइफ? इज इट टू बिकम एन आईएएस? Purpose of life is different from your material needs. Being a civil servant, we will cater to your material needs, your aspirations, but it is not the purpose of life. An unexamined life is not worth living. Okay, there is a statement from Socrates. An unexamined life is not worth living. अब इससे क्या मतलब हम समझते हैं? कुछ भी, एक सेंटेंस तो समझ में आया. मैं आई विल रिपीट इट अगेन फॉर यू. एंड आज मेरा काम इतना ही है कि मैं आपके दिमागों को थोड़ा सा खोल सकूं और थोड़ा सोचने पे मजबूर कर पाऊं. सो एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग. दिस इज अ फेमस स्टेटमेंट by one of the greatest philosophers which mankind has generated, and that is Socrates. Okay, the first philosopher. Many people say the only philosopher. Okay, and आपको जान के you will be surprised कि he was the person who was given death sentence. The wisest man on earth was given death sentence. And yes, नहीं, that all we will discuss. आज मैं क्वेश्चन ही करूंगा खाली. अभी आपके दिमाग में क्वेश्चंस आए, I am happy to cue why he was given death sentence. Okay, because he said कि when we will discuss in detail कि भाई knowledge is so important कि उसके बिना अगर मेरे को आप बोलोगे, because he used to question people while on the roads. मार्केट में जाता था, क्वेश्चन करता था. Because that was his method of reaching to a higher level of knowledge. Okay, so what is knowledge? Knowledge is virtue. So all these things we will try to learn, समझने की कोशिश करेंगे. But इससे हमको यहाँ के लेवल से थोड़ा सा हटके हमको बात करनी पड़ेगी. ठीक है? So first thing मैंने आपको बताया, we will have a discourse, continuous discourse and deliberations. We will have continuous discussions in the class. So हम मॉम के पुतले बन के नहीं बैठेंगे. ठीक है, कुछ भी जो भी समझ में आ रहा है पूछो कि ये कैसे हो गया, या मैं 5 क्वेश्चन तो मैं पूछूंगा, बट आपको भी उनके आंसर देंगे जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, whatever it is coming to your mind. So this is the first thing. Second thing is we will not have any preconceived notions. ठीक है, neither based on religion, neither based on sex, neither based on race, neither based on caste. We are studying in an unbiased way the political science. Okay, simple. So with this background, and everybody has to study. अगर आपको पढ़ना पड़ेगा, घर पे जो बुक्स आप लोगों को बताई जाएंगी, so you have to buy these books and start reading those books because it's not so easy. ठीक है, but conceptual clarity यहाँ पे हो जाएगी. बाकी तो it's very, ऐसा नहीं है कि बुक से आपको समझ में नहीं आएगा, but it will take its own time. So don't get disheartened. तीसरी जो चीज़ है, 1 महीने 2 महीने में हमको डिसाइड चीज़ें नहीं करनी है बहुत जल्दी, because things are never so easy. Okay, so anything is not so easy. To take you out from the darkness, it is very difficult.
you are in a sort of darkness, all of you, including me also for that matter, but मैं थोड़ा सा darkness से बाहर हूँ, थोड़ा सा बाहर हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग भी उस darkness से बाहर आ जाएं, right? So we will see in Plato's allegory of caves what he mean to say, what is that. So all this we will discuss. चलो. So now PSIR optional, as a optional we will learn कि भाई what is the syllabus for this PSIR optional. Okay. So PSIR optional has been decided, all for that matter, all those optionals has been divided into two papers, paper 1 and paper 2, 250 marks, 250 marks. Paper 1 में दो parts हैं, part A, part B. Part A has all the political theories and thinkers. Okay. So आप देखोगे the most important thing here is the Western political thought. I will not name any new names now because आप सोचोगे कि बहुत सारे नाम आ गए, you will get confused. No, it's very logical. Once you are there with in the class, it's very logical, it's very sequential. All you will learn, and बहुत इसकी बहुत अच्छी चीज़ एक है कि it will help you in your ethics paper. So you don't have to study for ethics paper especially. This is the beauty of this optional कि आप तैयारी 500 नंबर की कर रहे हो लेकिन आप 1250 मार्क्स का आपका ऑलरेडी इसी में तैयार हो जा रहा है. The people who say that this subject is vast, they are not understanding the fact that you don't have to study. Essentially आपको अलग से ethics पढ़ने की जरूरत ही नहीं है. आपको तो 500 मार्क्स का ऑप्शनल, 250 मार्क्स का ethics, then 250 मार्क्स का आपका essay का पेपर. You will learn the art how to write the essays because mostly the essays are philosophical. So all this entire philosophy we will read over here itself. आपको difficulty आएगी ही नहीं, right? So how to write an essay? Otherwise you take any other optional. आपको फिर you have to practice for essays, practice for how to write essays. Ethics के लिए अलग से you have to devote time. So here, by focusing on this optional, you can cover your again 250 marks तो हो गए हमारे. So 1000 marks यहाँ से हो गए. Then GS paper 2 का आप देखोगे. GS paper 2 is entirely PSIR only. So another 250 marks. So out of 1750 marks, 1250 marks आपके यहीं पे हो गए. And ultimately you have to enter into an arena where bureaucrats are going to be driven by politicians. So you have to understand the political structure. Without understanding the political structure, setup, how theories work, how nations behave, how global politics works, how international relations work, right? You can get selected into Indian Foreign Services. आप IPS बन सकते हो. तो आपको पता होना चाहिए कि how do politicians take decisions? What is the basic philosophy around it? Right? So all these things have to. This becomes very easy after that. So this optional gives you that advantage also. So during your working, also it will be very helpful. फिर आपका इंटरव्यू में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है. Why? Because again in interview the normal questions, I don't know about you guys, मतलब आप कितने लोगों को जानते हो ऐसे, but I have given 4 interviews, I have faced 4 UPSC interviews, so I know it very well कि वहाँ पे क्या होता है, right? So mostly initially they will start with your international relations only. They will start with global politics, your views on environment change, your views on this thing, what is China's position, right? So they will start what of Indian political system, because to create a good life, एक अच्छी life के लिए, okay, आपकी life अच्छी रहे, आप जोया ट्रेन से आए, right? So you were in some fear कि मेरे को कुछ problem है, मैं डरी हुई हूँ, कुछ नहीं, कुछ हो जाएगा, नहीं वो ठीक है, that is one part of the story. But then main thing is security. आपके दिमाग में एक चीज चलती है कि यार I am safe and secure. The same thing you will do in Afghanistan, you will have a different scenario. Yes. Right? So I am talking in that aspect. Why you are feeling safe? Because there is a stable government. Because your state is so कि वो आपको protect कर रहा है. And that is the biggest role of the state, to protect the citizens. ठीक है? And protect करने से क्या होगा? It is creating basically ultimately the situation of a good life. आपकी जो aspirations हैं वो आपको पूरा करने के लिए अगर मौका मिले
So that is the best thing ना. यूसुफ मलाला आपने नाम सुना होगा, राइट? मलाला यूसुफ। हाँ, so you have heard that name. उनको अपने एजुकेशन के लिए कितना इशू हुआ अफगानिस्तान में. So to create a good life, a state is equally important. We don't understand the importance of a state because we don't happen to counter it every now and then. Understood? आपको स्टेट से रोज तो कोई काम पड़ता नहीं है. आप आए गए चले गए अपना खा रहे हो पी रहे हो, कोई डेली कोई जरूरत पड़ रही है? नहीं पड़ रही. आप कब देखते हो स्टेट को? जब पुलिस वाला सामने आ जाता है. करो अभी सिग्नल क्रॉस करो, अगले नेक्स्ट स्टेज को पुलिस वाला पकड़ लेगा, राइट? सो देन यू सी द पावर ऑफ स्टेट. सो पॉलिटिक्स इज अबाउट पावर आल्सो. दैट्स इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स. चलिए विल डिस्कस. हाँ, सो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे प्लेटो, एरिस्टोटल, आप देखोगे none of the philosophy is gets completed without these thinkers. आप कुछ भी कर लो, and it is said that about Plato, मैं just एक idea दे देता हूँ कि entire political philosophy is the footnotes of Plato. ठीक है, अभी कोई आपको याद करने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे अपने आप याद होने लगेंगी चीजें. So entire political philosophy is the footnotes of Plato. मतलब he was so great, और उसकी जो प्लेटोनिक आइडियलिज्म की जो फिलोसफी है that is so great कि उसी के बाद जिन्होंने भी लिखा वो सब कहीं ना कहीं इसी पे बात कर रहे हैं, राइट? सो वील सी. तो ग्रीक फिलोसफी जो है that is, मतलब you can say कि even the word philosophy, फिल का अगर आप रूट देखेंगे, फिल इज समथिंग हु लव्स. ओके, फिल एंड सोफी. इट इज दिस वर्ड इटसेल्फ इज मेड फ्रॉम टू वर्ड्स, फिलोसफी, फिल एंड सोफी. ओके, सो सोफिस्ट वाज द पर्सन हु वर द टीचर्स इन द ग्रीस, द नॉलेजेबल पर्सन. हिंदी में इट इज कॉल्ड एज, फिलोसफी इज कॉल्ड एज दर्शन शास्त्र. व्हाई इट इज दर्शन? बिकॉज इट इज गेटिंग, हमारे को हमारा दर्शन करा रही है कि हम यहाँ पे हैं क्यों. What is our existence? धरती पे हम क्यों हैं? मतलब हम as a human being, what is our existence? What is the purpose for our existence? It's for the good life. एक purpose, right? Now, what is good life? Second question. एक अच्छी लाइफ है क्या? What is good life? देखो कितने सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, लेकिन आज तुम घर जाके ना each and everyone has to think कि what is good life. yes, बात तो सही है. पीसफुल लाइफ है ना. तो अब पीसफुल लाइफ में क्या है? मतलब कुछ भी करना नहीं है, nothing you want to work, और वो mental peace. So mental peace means you want to refrain from all the materialistic world, right or wrong? That is what I can see. कोई और, आप पे किसी और का कोई ओपिनियन और भी हो सकता है. तो जब आप मेंटल पीस की बात कर रहे हो, तो मेंटल पीस तो ऐसी आएगा जब आप मटेरियल वर्ल्ड से अलग हो जाओ. ट्रू? और आई स्टार्टेड माय लेक्चर कि व्हाट इज ट्रूथ, सच क्या है. ठीक है, सब लोग सोचना कि सच क्या है, हम क्यों हैं जिंदगी में, क्यों हम पैदा हुए, हमारे जीने का पर्पस क्या था, हम कर क्या रहे हैं, क्यों करना चाहते हैं. ठीक है, ये सब चीजों के ये है. तो मेंटल पीस तो मिलेगा मटेरियल वर्ल्ड से जब अलग होंगे, राइट ना? आर्यन हैज सम डिफरेंट ओपिनियन आई सपोज. मेंटल पीस और कैसे मिलेगा? कुछ काम नहीं करना ना. बेसिकली काम नहीं करना तो पैसा नहीं चाहिए. पैसा नहीं चाहिए तो पैसा ही तो सब चीजों की जड़ है, राइट? See the tribes of Nagaland, they are living very happily. They don't have much desires. As soon as your desire controls you, you become a unjust soul. ठीक है, हम देखेंगे इस चीज को, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजा आएगा. ठीक है, आप लोग बस आगे बढ़ते रहो धीरे धीरे, and then we will see. So this Machiavelli we have studied in political in world history. Machiavelli Renaissance, right? So he was a this person is standing between the modern world and the
traditional state, okay, traditional philosophers. So he is one person. Then Hobbes, Locke, Mill, all these are liberals. तो हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री में भी मैंने आपको बताया था कि हम लोग कैसे प्रोसीड करते हैं, ठीक है. सो नाउ दिस इज द लिबरल फिलॉसफी. देन वी विल कार्ल मार्क्स, द मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी, ओके, द मार्क्स, ग्राम्स्की, एंड देन दिस हन्ना अरेंडेंट. दिस इज एन इम्पोर्टेंट फिगर. जब हम इनको डिस्कस कर रहे थे, वी वर डिस्कसिंग अबाउट हिटलर एंड टोटलिटेरियनिज्म. दैट टाइम एक बार कभी आपने नाम शायद सुना होगा, ठीक है, नहीं बताया भी नहीं हो. दिस इज आल्सो पॉसिबल कि मैंने ना बताया हो, बट नाउ वी विल डिस्कस ऑल दिस, ओके. ये एक बार क्लियर हो गया ना. सो दिस एंटायर थिंग इज नथिंग बट जस्ट द रिवीजन, ओके. रिवीजन कैसे? आप देखो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैं, लिबरलिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, फासिज्म, गांधीज्म एंड फेमिनिज्म, ओके. तो लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी आप इधर ही पढ़ते हो, सोशलिज्म पढ़ लेते हो. सो मोस्ट ऑफ दीस थिंग्स आर नाउ रिपीटेड. Then again, theory of state, liberal, neoliberal state, Marxist state, post-colonial and feminist state. Okay, so these things again becomes. फिर now some concept, justice क्या होता है, equality क्या होती है, rights क्या होती है, democracy क्या होती है, okay, and then one important concept, no politics is complete without the concept of power. हो गया, खत्म. और ये अगर खत्म हो गया तो आप समझ लो आपकी ही 50% problem solving, 50-60% problem solving. I say this because this is the basis of your entire, आपकी जो जिंदगी की जो फाउंडेशन है ना, वो ये डाल देगा. Civil services तो it's a different story. Okay, I'm not talking about civil services, but this will transform you as an individual. That is, I am for sure. This is going to transform you as an individual. Okay, so. Okay, so paper one comprises of political theory and Indian politics. Okay, second part में अब Indian government and politics. So Indian polity, it is entirely Indian polity, but has to be written in a certain different way. Then we will discuss it later as soon as we proceed ahead. Okay, so आप देखोगे पूरा का पूरा ये Indian polity है, पूरा का पूरा है. इसकी एक सबसे बड़ी ब्यूटी यही है कि इसमें हमको यहाँ सब में नहीं फंसना है. हमको कहाँ फंसना है, कहाँ हमको where we have to look for the contemporary news and how to link it with them, because this part will obviously be covered in your GS also. Okay, so ये पूरा आपको पढ़ना ही पढ़ना है. तो GS में भी पढ़ना है, GS पेपर 2 बेसिकली. Okay, so इधर पढ़ लो या उधर पढ़ लो, बात बराबर है. लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है. Okay, then paper 2 entirely again it is about some IR theories, international theories, how nations decide, how nations take actions, world war क्यों हुए, उसको different aspects से देखना. Okay, there is some realist theory, कुछ realist होंगे, कुछ idealist होंगे. Okay, so that we will discuss. और उसमें सबसे जो important chapter है बस एक ही ये है, approaches to the study of इंटरनेशनल रिलेशंस, आइडियलिस्ट, मटेरियलिस्ट, मार्क्सिस्ट, फंक्शनलिस्ट एंड सिस्टम्स थ्योरी. बट ये आपको तभी समझ में आएगा जब आपका पेपर 1 की थ्योरीज कंप्लीट हो चुकी. ओके, सो दिस वी विल स्टार्ट ऑन लेटर स्टेज. ओके, अदरवाइज एक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स आती है, दैट इज कंपैरेटिव पॉलिटिक्स. अगेन वी विल स्टडी आफ्टर दैट पार्ट गेट्स कंप्लीट. ओके, सो मीनवाइल आपका देखो, आप ये देखोगे ग्लोबलाइजेशन, दिस इज अ जनरल कंसेप्ट. ओके, then again key concept in international relations, what is national interest, what is security and power, balance of power. वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ा था ये सब. ट्रांसनेशनल एक्टर्स एंड कलेक्टिव सिक्योरिटी पढ़ा था. So all these things are very generic and just we have to again rethink in from the point of view of political science. Okay, then changing international political order, rise of superpowers, ideological bipolarity, Russia and USA. Yes. Okay, Cold War, nuclear threat, non-aligned movement, collapse of Soviet Union. What is this? इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है. अगर वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास में थोड़ा सीरियस रहे होगे आप लोग, जो कि which is obviously you are not that much serious, है ना,
अगर पढ़ा है सो ये सब वही है, और ये फिर दोबारा कहीं ना कहीं रिपीट होगा. सो वेयर इज योर एफर्ट्स? ठीक है. सो इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम, ब्रेटन वुड्स, डब्ल्यूटीओ मैडम ने पढ़ाया होगा थोड़ा बहुत, ये पढ़ाने वाली है, इकोनॉमी में भी हो जाएगा. राइट. अगेन फिर यहाँ पे चीजें कुछ जो होंगी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएंगी. यूनाइटेड नेशंस, रीजनलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, सार्क, नाफ्टा. डू यू थिंक एनीथिंग यू विल नॉट हैव टू स्टडी फॉर जीएस? इसमें से दिस इज मैंडेटरी टू स्टडी. आप ऑप्शनल ये लो या ना लो, इट डजंट मैटर्स, यू हैव टू स्टडी ऑल दिस. तो जब पढ़ ही रहे हैं तो यही ले लेते हैं ना यार. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो समथिंग ये पढ़ना ही है. ये चीजें सारी की सारी चीजें आपको पढ़नी ही पढ़नी है जीएस के लिए. ओके. एनवायरनमेंट, कंटेम्परेरी ग्लोबल कंसर्न्स, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, ऑल these things you have to study. Gender justice, terrorism, nuclear proliferation, everything you have to study. So this is paper 2. Paper 2 में बस एक नई चीज है जो I told you, key concepts in international relations. Oh sorry, ये approaches to study of international relations. This is one topic where you have to really work hard. मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं, but at least एक अच्छी सी बुक पढ़नी पड़ेगी. That we will recommend, है ना? Then paper 2, part B, India and world. Do you think anything you don't have to study? India's foreign policy, you have to study for a GS paper. India's contribution to non-alignment के ऊपर वाला नीचे लेना है, बस कुछ नहीं करना है. Current role, India and South Asia, regional cooperation, SAARC, free trade, Turkish policy, impediments to regional cooperation, river water disputes, illegal cross-border migration. All these things are GS paper only. India and the global South, Africa, Latin America, India का role क्या है, leadership role in NIEO and WTO negotiations. Okay. India and global centers of power, USA, EU, Japan, China, Russia. You have to study. अगर नहीं पढ़ोगे तो वैसे भी सिलेक्शन नहीं होना जीएस में. तो पढ़ना तो है, इधर से पढ़ो या उधर से पढ़ो या रगड़ के पढ़ो, कैसे ही पढ़ो, ये सब पढ़ना ही है. There is no other option but to study. जब पढ़ना ही है तो एक ही चीज पेपर 1 पढ़ना है ढंग से एज ए सेपरेट सब्जेक्ट. पेपर 1 का पार्ट ये. So Indian nuclear question, changing perceptions and policy, recent developments in Indian foreign policy. ठीक है. अफगानिस्तान, इराक, वेस्ट एशिया, ये सब पढ़ना ही है. You have to prepare for your interviews also. What is difficult about it? Okay. So our strategy in this political science optional will be, what we will be following is, first we will cover paper 1 part A. Okay. Side by side India and world का शुरू हो जाएगा, because this is nothing, nowhere related to your theory part. Okay. So ये side से वो सारी चीजें शुरू हो जाएंगी. Okay. Obviously which will be taken by someone else, और इस paper 1 का part A जो है conceptual clarity के लिए that will be taken up by me. Okay. So ये आपका लिया जाएगा. लास्ट में लास्ट जब आप मेंस के लिए जाते हो, then you have to just know how to write the answers. Okay. GS के आंसर्स, GS में भी इंडिया यूएसए का क्वेश्चन आएगा, इसमें भी आएगा, but there will be a different strategy which will give you more marks. कैसे वो मिलेगा? जस्ट जो आईआर की थ्योरीज थी ऊपर कि नेशंस कैसे होते हैं, नेशन इंटरेस्ट कैसे काम करते हैं, वहां से आपको एक दो लाइनें जोड़नी पड़ेगी. सिंपल. ओके. So things are not that difficult. The only thing is the perception, what we do, what we have. Okay. चलिए. Now चलिए, अभी इतना समझ में आ गया political science का what is the syllabus for political science and international relations. Okay. Now we will try to understand कि before starting our topic, हम लोग को पहले political science है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि what do you understand by politics. क्योंकि क्या है ना, अब याद रखो, ये कोई एक चीज नहीं है कि कोई एक चीज बता दोगे तो सही हो जाएगी, रिति ने ये बता दिया तो इट विल बी करेक्ट. नो, इट इज नॉट लाइक दैट. बट आई वांट टू अंडरस्टैंड कि आप लोग राजनीति से क्या समझते हो. मैं अपने क्वेश्चन को दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, बिकॉज
आई नो कि एक बार में जवाब आएगा नहीं, right? और मैं पिन पॉइंट भी करूंगा तो भी जवाब नहीं आएगा। मैं दोबारा से अपने क्वेश्चन को बोलता हूँ कि एक वर्ड जब हम हमारे माँ बाप भी बोलते हैं कि राजनीति यार ये पॉलिटिक्स तो गंदी चीज है, खराब चीज है, बोलते हैं कि नहीं? किसी के माँ बाप हैं जो दूसरी तरफ बोलते हैं कि नहीं ये तो बहुत अच्छी चीज है। Anyone's father or family is in politics? नहीं है ना? हाँ, तो अब बताओ कि कितनों के पेरेंट्स बोलते हैं कि पॉलिटिक्स इज वेरी गुड? जस्ट रेज योर हैंड्स। अरे कोई तो आई वांट कि काउंटर बैलेंसिंग जरूर होनी चाहिए। मैं बोलता हूँ कि पॉलिटिक्स बहुत अच्छी चीज है, अब आप सब मिलकर मेरे को काउंटर करो कि नहीं अच्छी है कि नहीं? नहीं है, ऐसा घर से बोल क्या नहीं? पॉलिटिक्स अच्छा नहीं है, गलत है। अच्छा, और कौन बोल रहा है पॉलिटिक्स गलत है? They misuse people are हाँ, हाँ। misusing their power, तो इसलिए उसको पावर एक एक करके लिख देते हैं। हाँ प्लीज जस्ट नो आंसर हैज टू कम फ्रॉम यू ओनली, डोंट वरी। यस, तो बोलिए कम ऑन। दिस इज जस्ट अ डिस्कशन, डोंट वरी। अभी तो हम कुछ पहुंचे ही नहीं, अभी तो आप जो भी बोलोगे वो सर आंखों पे है। You can't conclude politics is good or bad. बट बड़े बड़े लोग लिख के मर गए कि पॉलिटिक्स अच्छी चीज है। तो हमारे माँ बाप जो है, आवर फादर्स आर मोर नॉलेजेबल और एरिस्टोटल वाज मोर नॉलेजेबल। चलिए वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट वी आई वांट टू नो कि मतलब अच्छी बुरी एक चीज हो गई। ओके, सो एवरीबॉडी एग्रीज हियर कि पॉलिटिक्स इज नॉट गुड, राइट? सो माय टास्क इज टू मेक इट हैपन कि आप लोगों को पॉलिटिक्स ये एग्री करने का मेरा टास्क है कि पॉलिटिक्स एक अच्छी चीज है। दिस इज माय टास्क, ओके? अभी इस सर वो ऐसा है कि every coin has two sides ना, so politics is good and also bad. Okay, chalo, let's ponder upon this also. Tell me, is it inevitable? Inevitable का मतलब समझते हैं? इससे बचा जा सकता है क्या? Politics is हाँ, आप बच सकते हो? we are living in democratic चलो, states. अब हम 4-5 क्वेश्चन इकट्ठे करते हैं, ठीक है? अब हमारी हो गई व्हाट इज पॉलिटिक्स हो गया। डिस्कशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्वेश्चंस लिखना शुरू किया हमने, ठीक है? जो क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आने चाहिए। व्हाट इज पॉलिटिक्स? इज पॉलिटिक्स गुड और बैड? Both. नहीं अभी इतनी जल्दी कैसे मांग है? अब जो स्टैंड लिया है उसमें कम से कम आधा घंटा टिकना है। सर मैंने वही बोला सर, अच्छी भी है बुरी भी है। अब मेरे को लगता है एक चीज तुमने सीख ली है कि कोई भी साइड नहीं लेनी है। सर ब्यूरोक्रेट है ना, न्यूट्रल रहना है। चलो, नहीं। सो इज पॉलिटिक्स गुड और बैड? ये हमारा सेकंड क्वेश्चन। Can't let me. ओके, चलो अभी एक करके देखेंगे ना, हम पहले क्वेश्चंस इकट्ठे कर रहे हैं, राइट? तो क्वेश्चन लिखते हैं। इज इट इनएविटेबल? इनएविटेबल का मतलब समझते हैं? इससे बचा जा सकता है क्या? Politics. व्हाई डू पॉलिटिक्स कम इनटू प्ले? So we are living in democratic states. नहीं, डेमोक्रेसी में नहीं रह रहे, वहाँ पॉलिटिक्स नहीं होती है। नहीं होती ना सर। क्यों? पहले हाँ? चलो, I'll answer this, हाँ? I'll answer this. क्या था क्वेश्चन? मैं क्वेश्चन भूल जाऊंगा, इसलिए तुम लोग को काम है क्वेश्चन याद रखना। ओके, सो There is no politics in non-democratic states. नहीं वो नहीं था। वो देखना तो बाद में आया। So, is it inevitable? Yes or no? We'll see. Okay. How do politics come into picture? Come into play बोल देते हैं। Play बोल देते हैं। क्योंकि अगर या तो इनएविटेबल है तो आती कैसे है? क्या जरूरत है? कहीं से तो आती होगी ना, मतलब इसको जब हम किसी चीज को हम छोड़ नहीं सकते, जैसे क्लास में आना,
आपकी चॉइस है ना. अगर इसको इनएविटेबल बना दिया जाए, दो इट इज इनएविटेबल, बट इट इज योर इग्नोरेंस दैट इज मेकिंग यू टू टेक रॉन्ग. इग्नोरेंस ऑफ गुड, कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है वो आप डिसाइड नहीं कर पाते हो, इसलिए आप क्लास मिस कर देते हो. दिस इज ट्रू. दैट इज द, यू आर नॉट बैड, आप बुरे नहीं हो, बट इट इज द इग्नोरेंस ऑफ गुड. हम बहुत चीजें डिस्कस करेंगे, तुम लोग के दिमाग पूरे खाली हो जाएंगे धीरे धीरे, और उतने ही भरेंगे भी, अच्छी नॉलेज से भरेंगे, क्योंकि मेरे को पहले पूरी मेहनत करनी है. जो तुम्हारा जमा पूंजी है ना, जो अब तक की चलो जमा पूंजी समझ रहे हो ना, जो 20-22 साल में जो गंद इकट्ठी करी हुई है दिमाग में, उसको पहले मेरे को बाहर करना है. चलिए, सो हाउ डू पॉलिटिक्स कम इनटू प्ले. ओके, एंड देन एक क्वेश्चन आर्यन हैज रेज्ड कि इन नॉन डेमोक्रेटिक स्टेट देयर इज नो पॉलिटिक्स, है? चलो अब हम थोड़ा सा यहाँ से क्वेश्चन पकड़ते हैं जो हमको यहाँ तक आने में हेल्प करें कि पॉलिटिक्स है क्या. क्योंकि हमारा सारा का सारा जो एंटायर जो हमारी मेहनत है वो ये है कि पॉलिटिक्स क्या है. इतने सारे क्वेश्चंस इसलिए लिखे हैं बिकॉज व्हेन वी ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस ना, हम तब सोचने की कोशिश करते हैं कि अब हम, क्योंकि हमने कभी सोचा नहीं है आज तक. ये एकदम जो 3 इडियट्स में देयर वाज अ थिंग ना कि दीस आर अनयूज्ड ब्रेन्स. आप सभी के जो ब्रेन्स है ना अभी तक खुले नहीं है इस तरीके से सोचने के लिए. These are not, I am not saying it is unused, but I am saying it that these have not been, इनको उस तरीके से कभी ये नहीं किया गया है, कुछ नहीं किया गया, राइट? सो तो अब इसमें जो सबसे सही लग रहा है मेरे को, दैट इज द, इज इट इनएविटेबल. ये पहले आंसर करना पड़ेगा, क्योंकि कोई चीज अगर जरूरी नहीं है तो फिर हमको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, राइट? बट इफ इट इज, it has to be, it is a part of our life, then we have to study, correct? I'll give you an example. Tell me, आप कॉलेज इस क्लास में ही देख लो, या क्लास में यहाँ नहीं तो कॉलेज में होती होगी, यार वो बहुत पॉलिटिक्स करता है, देखो वो लड़की बहुत पॉलिटिक्स करती है हमारे साथ, है ना, मेरे को उसने टीच कर दिया, देखो ये कर. और ज्यादातर हम इसमें द मोस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब जो एक इसकी बात है ना, वो एक नेस्टी टर्म नहीं हम यूज करते हैं. जनरल पार्लेंस है कि पॉलिटिक्स को हम एक गलत तरीके से ही देखते हैं. तो यहाँ पे भी वही है कि आप मतलब एक छोटी सी इकाई ले लो, देयर इज अ डिसएग्रीमेंट, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट होता है, वहाँ पे भी देखते होगे ना, पॉलिटिक्स कर दी उन्होंने, कर दी कि नहीं कर दी? आई गिव यू अ मोर डीपर एग्जांपल. Now, don't you think कि हमारे घर में भी पॉलिटिक्स होती है? घर में, घर में, मैं बाहर की तो बात ही छोड़ दूँ. अब हम बाहर से घर की तरफ घुस रहे हैं धीरे धीरे, हमारे घर में पॉलिटिक्स होती है. तो जो चीज हमारे घर में नहीं, इसको समझ में नहीं आया लग रहा है. कैसे? कौन इसका आंसर देगा? कैसे? हाँ पांडुरंग, हमारे फेवर में डिसीजन आने के लिए करते हैं ना ऐसे. हाँ कौन सा डिसीजन आपके फेवर में नहीं आया? जैसे जस्ट लाइक घर वाले मतलब भेदभाव मींस इनजस्टिस. ओके, आई विल रिफ्रेश योर वर्ड्स, डोंट वरी, आई एम हियर. जब तक मैं हूँ यहाँ पे तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं. आपके मन में जो आ रहा है बोलो, जो आ रहा है बोलो. I will rephrase your words in political terms. Okay? Bhedbhav. It starts from a birth. नहीं समझ रहा है दीदी को. प्रेरणा, प्रेरणा. आप मींस लड़का लड़की के बारे में बात कर रहे हो कि जेंडर, जेंडर बेस्ड पॉलिटिक्स. होती है जेंडर कि क्यों, दो लड़के रहे तो भी भेदभाव होते ही. नहीं, it's not about injustice. It's not about injustice. It's पार्शियलिटी. partiality बोल सकते हो.
एक बोल सकते हो, बट द मोस्ट वायलेंट फॉर्म विच वी ऑब्जर्व मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में, हैव यू डोमेस्टिक वायलेंस, हैव यू seen? It is nothing but a where the power politics come into play. Who is in the dominating position? Male. Similarly, in a child and a father relationship, who is in the dominating position? Father. Who is in the powerful position? Parents. So he will slap you, he will do everything, and he will want what he wants to do. He will never ask, या कभी कभी पूछेगा भी, but he will ultimately want you to do. बहुत से लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जिनको बंदा ही नहीं है सिविल सर्वेंट, फिर भी जबरदस्ती क्लासेस करा दूंगे, जबरदस्ती। अरे नहीं बनना था भाई, right? So power is something which you are unwilling to do and you want to, बड़ा कंसेप्ट हम बाद में देखेंगे, बट जो हमारे नॉर्मल पार्लेंस में जिसे हम समझते हैं, so the basic thing is the power starts, the politics start from the beginning, from family, from father, from husband. पावरफुल पोजीशन कैसे होती है? खाली ताकत से नहीं होती है, इकोनॉमी से भी होती है, राइट? तो ये चीजों को बहुत ध्यान रखना, और ये चीज देखना वो भी तभी होगी जब लेडी पावरफुल होगी और लड़का ये होगा, तो पावर इक्वेशंस चेंज हो जाएंगे, राइट? So some people of you have to change the power equations. ठीक है? घर जाके लड़ाई नहीं करनी है। इतनी जल्दी नहीं करोगे, लेकिन मेरे को पता है मेरी क्लास में 2-3 महीने आओगे तो पक्का लड़ाई करोगे। ठीक है? चलो कोई बात नहीं। So what we are learning is, so for a good life, एक अच्छे जीवन के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है कि आपको पॉलिटिक्स तो होगी ये पता है, ठीक है? तो पॉलिटिक्स से हम बच नहीं सकते, ये पहला पॉइंट है, तो ये हमने क्लियर कर दिया। इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, बट अब यहीं पे हम इसको एंड करेंगे, ठीक है? अब हम हाउ और व्हाई, ओके, हाउ और व्हाई दोनों एक ही साथ लगा देते हैं। व्हाई डू पॉलिटिक्स कम इनटू प्ले? अब हमने ये तो समझ लिया कि पॉलिटिक्स तो होनी है, उससे हम बच नहीं सकते, और इसीलिए अरिस्टोटल ने इसको मास्टर साइंस बोला है। अरिस्टोटल जो है, सिलेबस चला गया ना, कोई बात नहीं। So Aristotle has said that it is the master science. Okay? He has said that man by nature is a political animal. आदमी प्रकृति से एक राजनीतिक प्राणी है। कितनी मतलब, इसका मतलब ये है, जब ये बोल के चले गए, इसका मतलब आप बच ही नहीं सकते, तो आप क्यों बचना चाह रहे हो इस ऑप्शनल से? ओके, जब हम, हमारी जिंदगी का आधार ही ये है, हमारी जिंदगी में सीखना ही हमको ये है, हमारी जिंदगी की अच्छी, बिकॉज इट एनकम्पासेस द एंटायर गैमट ऑफ योर लाइफ। पॉलिटिक्स तो होती है ना बॉस और एम्प्लॉय की, रेंट किराएदार और मकान मालिक की होती है। अब मैंने जो आपको एग्जांपल्स दिए ना, उनको हम रिलेट करने की कोशिश करेंगे। सो हाउ डू पॉलिटिक्स कम इनटू प्ले? पॉलिटिक्स आती क्यों है? व्हाई? बिकॉज देयर आर, फर्स्ट कुछ हमारे रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज अगर प्लेंटी है तो कोई पॉलिटिक्स नहीं आती, कोई जरूरत ही नहीं है पॉलिटिक्स की, आराम से कंदमूल खाते, फल खाते, आराम से चलता रहता है। बट देयर इज अ स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। लड़का और लड़की में क्यों भेद करना पड़ता है? आपने देखा होगा, दिस डिस्टिंक्शन इज लेसर इन एफ्लुएंट सोसाइटीज, राइट और रॉन्ग? ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट इफ वी वांट टू अराइव एट अ फेयरर कंक्लूजन, वी विल सी कि जो जिनके पास थोड़ा इकोनॉमिकली जो थोड़े बेटर हाफ पोजीशन में है, वहां पे डिस्टिंक्शन थोड़ी एक हद तक कम दिखाई देती है। बिल्कुल नहीं दिखाई देती, वो नहीं है, वो जो दिखाई देती है वो कल्चरल वैल्यूज की वजह से है। बट यहाँ पे जो पैसा है जिनके पास, वो सेम स्कूल में पढ़ाएंगे, सेम जगह ले जाएंगे, सब कुछ करेंगे, बट फिर भी रात में टाइम से आना चाहिए, राइट और रॉन्ग? तो यहाँ पे क्या चीज प्ले आ गई, पिक्चर प्ले में आ गई? कल्चरल वैल्यूज या वैल्यू सिस्टम, सोसाइटी के नॉर्म्स।
ओके सो विल डिस्कस इट। तो मतलब क्या हो गया, इसका एक मतलब हो गया कि हमारे पास रिसोर्सेज का जब हमको डिस्ट्रीब्यूशन करना है, रिसोर्सेज का जब डिस्ट्रीब्यूशन करना है और वो हमारे पास स्कैरसिटी में है, डिस्ट्रीब्यूशन तो करना पड़ेगा। अब इतने सारे लोग हैं मेरे पास 10 ही स्वीट हैं, तो मैं किसको दूंगा? मैं बोलूंगा अच्छा आज सब लड़कियों को मिलेगा बस भाई, या जिसने टॉप किया उसको मिलेगा। अरे क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज कम है ना। सो समवेयर आई हैव टू टेक अ डिसीजन, और डिसीजन लेने वाला जितना लॉजिकल होगा, जितना अच्छा होगा, उसके डिसीजन को उतना ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, राइट? सो फॉर टेकिंग अ डिसीजन, पॉलिटिकल डिसीजन, यू हैव टू बी अ वाइजर मैन बिकॉज इट कंसर्न्स द पब्लिक, राइट और रॉन्ग? ठीक है ना? तो ये चीज आपको, अच्छा तो एक चीज हो गई कि स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। दूसरा हो गया कि हम सब अलग अलग हैं, राइट? सो जब हम अलग अलग हैं तो हमारी रिक्वायरमेंट्स अलग है, हमारी वांट्स अलग है, हमारी डिजायर्स अलग है, तो डिसएग्रीमेंट्स तो होंगे ना, बिकॉज ह्यूमन बीइंग कैन थिंक, सो देयर आर ऑलवेज डिसएग्रीमेंट्स। डिसएग्रीमेंट होते हैं ना, मैं क्यों नहीं जाऊंगी, मैं क्यों नहीं पढ़ सकती, वो पढ़ रहा है मैं क्यों नहीं पढ़ूंगी। अगर ये सब ना हो तो कोई जरूरत ही नहीं ज्यादा पड़ेगी, राइट? सो डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, इस वजह से पॉलिटिक्स होनी ही है। डिसएग्रीमेंट होते हैं ना, आरएसएस की डिसएग्रीमेंट होंगे, मस्जिद कहाँ बनेगी, बाबरी मस्जिद यहाँ बनेगी कि वहाँ बनेगी, डिसएग्रीमेंट। हु विल सेटल? प्रॉपर पॉलिटिकल सिस्टम में जो जुडिशरी दी गई है वो इसको सेटल करेगी। तो अब यहाँ पे क्या है, मतलब डिसएग्रीमेंट्स होते हैं इसलिए पॉलिटिक्स जन्म लेती है, स्कैरसिटी है इसलिए पॉलिटिक्स जन्म लेती है। आज से अगर हम 20 साल, मतलब अब आज से हम पहले चले जाएं जब सबके लिए पूरी जमीन थी, खेती करो, कुछ भी करो, या खेती भी ना करो, उठा के खा लो, वहाँ पे तो कोई पॉलिटिक्स होती नहीं थी। ट्राइबल्स में कुछ होती थी? नॉर्मल एकदम, मतलब कंदमूल खाएंगे, एकदम आराम से रहेंगे, गए सब लोग, खाना खाया है, लेडीज ने खाना बना लिया तो खा लिया, नहीं तो कोई बात नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, राइट? सो इसीलिए हमको समझना है। तो अब ये हमको समझ में आ गया कि पॉलिटिक्स इनएविटेबल है। पॉलिटिक्स क्यों पिक्चर में आती है ये भी हमको पता चल गया। अभी आपने बोला था नॉन डेमोक्रेटिक स्टेट में देयर इज नो पॉलिटिक्स। यहाँ तो स्टेट की तो बात छोड़ दो, यहाँ तो घर से पॉलिटिक्स शुरू हो रही है। कार्ल मार्क्स ने बोला था, कार्ल मार्क्स जब हमने वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ रहे थे तो बॉर्जिस और प्रोलेटेरिएट्स थे, कुछ याद आया? वर्कर्स और कैपिटलिस्ट क्लास। हाँ, तो वर्कर्स और कैपिटलिस्ट क्लास में पॉलिटिक्स होती थी कि नहीं होती थी? होती थी। वन अफगानिस्तान में देख लो, नॉन डेमोक्रेटिक, कोई डेमोक्रेसी तो है नहीं है, फिर भी वहाँ पे पॉलिटिक्स तो होती है। तालिबान बनेगा कि पाक बनेगा, तालिबान इसको उठा के करेगा, ये उसको उठा के करेंगे। टोटलिटेरियन स्टेट्स में मतलब एज यू ऑल नो, हिटलर बिकेम अ टोटलिटेरियन थ्रू अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। सो पॉलिटिक्स तो होगी, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, बट ऑब्वियसली पॉलिटिक्स इज इम्पोर्टेंट ऑल्सो। एक तो हो गई इनएविटेबल, ठीक है, कोई चीज बुरी होने के बाद भी, कोई चीज बुरी है फिर भी मजबूरी है, तो क्या ये चीज बुरी है? अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। इज पॉलिटिक्स बैड? जो हमने एक क्वेश्चन शुरू में किया था कि इज पॉलिटिक्स बैड। अब अपॉन गेस बोला है, अभी भी यस, वेरी गुड। तो अब बताओ, अगर हमारे को एक वी हैव टू टेक अ सर्टेन डिसीजन, व्हिच प्रोसेस इज बेटर? इट इज थ्रू कंसिलिएशन और इट इज थ्रू द यूज ऑफ पावर? बिकॉज डिसएग्रीमेंट होंगे, हमारे आपके डिसएग्रीमेंट होंगे, पॉलिटिक्स होगी, बट बिकॉज वी हैव अ बैड नोशन ऑफ पॉलिटिक्स कि पॉलिटिक्स हमेशा गलत डायरेक्शन में की जाती है, ऐसा नहीं है। हमारे दिमाग में ही ये बैठा हुआ है कि पॉलिटिक्स गलत तरीके से की जाती है। कंसिलिएशंस भी होते हैं, रिकंसिलिएशन होते हैं, बिठाया जाता है, डेलिब्रेशन होता है, डिस्कशन होते हैं कि नाउ इन दिस सर्कमस्टेंसेस दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन। सो आइदर यू टेक डिसीजंस थ्रू कंसिलिएशंस, कॉम्प्रोमाइज, उसी से होता है ना। व्हाट इज लेजिस्लेटिव? डिस्कशन होते हैं, डेलिब्रेशन होते हैं, तभी पॉलिसीज एंड लॉज बनते हैं ना, अदरवाइज तो कोई लॉज ही नहीं होंगे। सो दिस थिंग इज very important from the point of view of
So I'm saying that aspects of the politics means जो injustice इसके ऊपर से जो politics होती है ना, that is bad politics. तो मतलब अभी कम से कम यहाँ तक आए कि 50% ठीक है, 50% बुरी है। तो पहले से ही वही बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, चलो अभी और आते हैं, है ना, अभी और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो बुरी के लिए कौन जिम्मेवार है? We Wise human itself. man. वी ठीक है, Human itself. यस। नाउ व्हाई वी? बिकॉज वी आर अनजस्ट सोल्स। पॉलिटिक्स एज ए एक्टिविटी इज नॉट बैड, द पर्सन हु इज डूइंग इट, Aspects of it is Right. really bad. सो इसका मतलब ये है कि पॉलिटिक्स के कुछ आइडियल्स होने चाहिए, Ethics. आइडियल्स, एथिक्स। तो अब तुमको पता चला कि इतना एथिक्स क्यों पढ़ाया जाता है पॉलिटिकल साइंस में। अब अपने आप ही शब्द बोल रहे हो ना। Because one thing we have understood, it is inevitable, it has to take place. Secondly, it is good for its own sake, because जो decisions वहाँ से आएंगे, that will be for the betterment for the entire society, for the public. That is to govern our lives in a better way, right? So for taking those decisions, the person has to be wise. इस पे किसी का disagreement है? There has to be certain ideals. Okay, what are those ideals? वो हम देखेंगे, ठीक है। हमारा क्या होता है कि हम पॉलिटिक्स में खाली इसी चीज पे उलझ के रह जाते हैं कि हम पॉलिटिशियंस को देखते हैं, बट दैट इज नॉट पॉलिटिक्स। अब मैं फिर दोबारा से एक बार बोलूंगा कि हम पॉलिटिक्स को किस फ्रेम में देखते हैं? पॉलिटिक्स एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आप देख रहे हो। आप समझ रहे हो? आपका और हमारा जो सबका जो सराउंडिंग्स में जो नोशन बना हुआ है ना, हम पॉलिटिक्स को कैसे देखते हैं कि पॉलिटिक्स इज अ वर्क ऑफ गवर्नमेंट और ये उसी का काम है। सो पॉलिटिक्स वी सी एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस कि भाई चलो ठीक है, तो जस्ट ये तो थोड़ा सा एक ये है, डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, है ना, हु शुड गेट व्हाट, वी हैव सीन कि किसको क्या मिलना चाहिए, ठीक है, ये सब चीजें हम देख चुके हैं। मैं इसको लेके आना चाहता हूँ एक और चीज पे, यस। सबसे बड़ी पॉलिटिक्स की जो एक ये है ना त्रासदी है, इसको त्रासदी बोलना चाहिए, डिफिकल्ट थिंग है। We don't see politics as a search for conflict resolution. हम लोग जो समझते हैं ना, the statement which he is written is politics as a search for conflict resolution, which is an inevitable feature of human condition. So your conditions will improve. What does this statement means is your human conditions के लिए जो important है, हम उसको as a mechanism of conflict resolution नहीं देखते। हम कैसे देखते हैं उसको? हम 4 टर्म्स में देखेंगे कि why politics is a contested concept। तो अब हम शुरू में जो बात करी थी हमने कि पॉलिटिक्स से आप क्या समझते हो, तो अभी जितना भी आप लोगों ने हम लोगों ने डिस्कस किया कि पॉलिटिक्स बुरी है, ये है, वो क्यों है? क्योंकि हम उसको समझते हैं पॉलिटिक्स एज ए आर्ट ऑफ गवर्नमेंट, ये वाला, ठीक है। फिर कुछ समझदार लोग उसको पॉलिटिक्स, अब देखो, अब पॉलिटिक्स की इतनी 4 बातें होती, क्योंकि मतलब अब इसमें एक एक बात को हम थोड़ी समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, कि पॉलिटिक्स क्या है। एज ए आर्ट ऑफ गवर्नमेंट की जब हम बात करते हैं, तो हैव यू हर्ड ऑफ एक बिस्मार्क का नाम सुना है आपने? Bismarck. हाँ, Otto von Bismarck, that was in Unification of Italy. international relations, oh sorry, world history में जब unification of Germany पढ़ रहे थे, then we have at that point of time we have studied about Otto von Bismarck, okay, so he considers it as an art, kala, and you know that Otto von Bismarck has been one of the biggest diplomat that Europe has got so far, correct? That diplomat जिसमें कि उसने फ्रांस को भी हराया, correct? So this is politics. For some it will be bad, for France it will be bad, correct? But Otto von Bismarck sees it as an art of government कि कैसे negotiations किए जाते हैं, कैसे आपको ऑस्ट्रिया को साथ में लेना है। If you all of you can remember, ऑस्ट्रिया को साथ में लिया था, right?
सो ऑल दिस थिंग्स हैव टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन कि किसको साथ में लेना है, ये पॉलिटिक्स है उसके हिसाब से, ऑटो वन बिस्मार्क के हिसाब से। ओके, कुछ लोग होते हैं देन सेकंड एस्पेक्ट हु सीज पॉलिटिक्स। एक तो स्टेट, जब आप आर्ट ऑफ गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग इट एज एन आर्ट ऑफ गवर्नमेंट, वी आर लुकिंग एट द इंस्टीट्यूशंस कि इंस्टीट्यूशंस जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं, इंक्लूडिंग राइट फ्रॉम द लेजिस्लेटिव बॉडी, द स्टेट, है ना, ये कैसे फंक्शन करेगा, ब्यूरोक्रेसी कैसे फंक्शन करेगी, मिनिस्टर्स, एग्जीक्यूटिव्स, ये कैसे फंक्शन करेंगे। हम वी आर लिमिटिंग आवर नॉलेज ऑफ पॉलिटिक्स टू दिस एस्पेक्ट ओनली। Understood? Now there are some people who will say कि politics is a public affair, ठीक है, जो भी पब्लिक को कंसर्न है, कंसर्न करता है, all that is a matter of study in politics, ठीक है। अब देखो कि बड़े बड़े विद्वान भी एक मत नहीं हो पाए, कोई पॉलिटिक्स को किसी और तरीके से देख रहा है, कोई किसी को और तरीके से देख रहा है, तो हम सब कैसे एक मत हो जाएंगे, ठीक है। तो पब्लिक अफेयर, अब इस बात पे जो है पब्लिक अफेयर जब बोलते हैं तो किसको गुस्सा आएगा, फेमिनिस्ट को बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा। बोला आपने जो पब्लिक प्राइवेट डिवाइड है, देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज पब्लिक प्राइवेट डिवाइड। ओके, सो हु विल बी अगेंस्ट दिस कि भाई आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, हाउ डज द मैटर ऑफ ट्रिपल तलाक डजंट अफेक्ट्स द मुस्लिम वुमेन, राइट। द मैटर ऑफ जो हमारी सती प्रथा थी, was it a political issue? Is it a political? Shall it be a political issue? Yes or no? होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? Yes. तो फिर ये डेफिनेशन के हिसाब से तो हम बोल ही सकते हैं कि ये तो पब्लिक मैटर है, ये तो पर्सनल मैटर है। सिमिलरली आप समझ रहे हो बात को? अब समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? अब मैं आपसे ट्रिपल तलाक, then sati, then brahmanical order, okay? समझ रहे हो? Still the state has made a law on this sati प्रथा। स्टेट ने लॉ बनाया था कि नहीं बनाया था? Yes. Abolition of sati हुआ था कि नहीं हुआ था? 1828. So this means कि पर्सनल इज पॉलिटिकल। कुछ जो महिलाएं आंदोलनकारी थी ना, डंडा लेके खड़ी थी, बोले ऐसे कैसे, पर्सनल इज पॉलिटिकल। आप ये कैसे बोल रहे हो कि जो है ये बाउंड्री है, अंदर ही अंदर पॉलिटिक्स हो रही है, उसका क्या करेंगे? व्हाट वी विल डू विद दैट? बिकॉज इट इज फॉर द गुड लाइफ, एंड वो गुड लाइफ तो हो ही नहीं रही है, राइट? सो ऐसा नहीं है, बट आपके जो अभी तक नोशंस थे, मैं उन नोशंस को किल कर रहा हूँ। आप अभी तक समझते थे कि पब्लिक लाइफ में जो चल रहा है वही पॉलिटिक्स है। नहीं, वैसा नहीं है। एक और मैटर को लिख लेते हैं, हलाला। हैव यू हर्ड ऑफ दिस? जाके देखना, ठीक है? यू आर अवेयर ऑफ इट? Yes. व्हाट इज इट? जस्ट सर वो हलाल प्रैक्टिस पता है? हलाल नहीं, हलाला। हलाला हलाला इज मतलब एक डाइवोर्स, जो हस्बैंड वाइफ के बीच में डाइवोर्स होता है, उस हस्बैंड वाइफ को वापस से शादी करना है, तो उसको दूसरे, मतलब 3 बार उनका अगर तलाक हुआ, 4थे बार उनको वापस से शादी करना है, तो लेडी को दूसरे के साथ शादी करना पड़ेगा, फिर वो अपने पहले पति के साथ relation कर सकती है। उसमें भी बहुत कुछ है बीच में, तो वो पढ़ लो। See, you have to understand these things.
व्हाई आवर सोसाइटी और ये इस तरीके से चीजें थी, इनके भी पीछे लॉजिक है। ऐसा नहीं है कि दीज आर बियॉन्ड मतलब बेस्ड ऑन ये, वो लॉजिक क्या था और उसको आजकल हम कैसे यूज कर रहे हैं, दैट बिकम्स डिफरेंट। So the matter becomes, so politics, so what we understand, अब आप बताओ पॉलिटिक्स अच्छी है कि बुरी है? अब धीरे धीरे बोलना शुरू करो। सती प्रथा को बैन किया कि नहीं किया? लॉ बने कि नहीं बने? ट्रिपल तलाक के अगेंस्ट में लॉ बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? Again, I am telling that. हाँ, चलो लेट्स डिस्कस नेक्स्ट पॉइंट। तो मतलब ये एग्री करो कि हमारा नोशन यहाँ तक सीमित था, राइट? Because we have not understood the positive aspects of politics. So far, what you guys have seen and what I have seen as a individual are the negative aspects of politics. But this is the positive aspect of politics. There was a disagreement कि सती बैन होना चाहिए नहीं होना चाहिए। बाल गंगाधर तिलक, आप देखो जो चाइल्ड मैरिज है, right? So all these things, medical termination of pregnancy 20 weeks में होना चाहिए, 26 weeks में शायद ऐसा कुछ है, शायद मैडम अच्छा बताएंगे, right? So 26 weeks, 24 weeks कुछ ऐसा है, 24 तक टर्मिनेट कर सकते हैं। तो ये सब क्या है? बदलती, ये सब पर्सनल मैटर्स हैं, right? But still politics has entered into that sphere और politics की जरूरत वहाँ पे है हमको हमारे जीवन को बढ़िया करने के लिए, okay? Now come to the third aspect of politics, which is politics has to be seen as a matter of compromise and consensus. Okay? So हमारी जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो उसका जो ये है compromise, हमारे disagreements हैं that we have discussed. So based on all those disagreements, हमारे पास politics को as a compromise, we should see as a compromise and on a consensus basis. ठीक है? हम politics में एक consensus बनाने की कोशिश करते हैं। सोसाइटी में भी देख लो, लड़ाइयाँ होती है ना नाली के ऊपर या पानी के ऊपर। यहाँ तो नालियों के ऊपर नहीं होती, हमारे यहाँ होती थी। किसके ऊपर? नालियों के ऊपर। क्योंकि क्या होता था, यहाँ अपार्टमेंट्स है ना, वहाँ सिंगल हाउस हुआ करते थे। नहीं, चॉल सिस्टम भी नहीं है, वो देखा ही नहीं तुम लोगों ने। जो वो बहुत इंडिविजुअल घर होते हैं ना, उनके आगे से ड्रेनेज जाता है, तो वो भी एक एस्पेक्ट बन जाता है, इशू होता है, क्लीनलीनेस का इशू। रोड का पैसा मैं नहीं दूंगा, तू देगा, ये तूने ज्यादा खर्च किया है, तेरा घर बड़ा है, इतना बड़ा घर है, मैं छोटे से घर में रह रहा हूँ, मैं क्यों दूंगा। ये तो बॉम्बे में भी होता है। यस, आई हैव सीन दिस। पर स्क्वायर फीट रेट अलग है मेंटेनेंस का। व्हाट इज दैट? वो तो अलग है। वो कैसे अलग है? वो कैसे अलग हो गया? झगड़ा, वो जो आपने बताया वो झगड़ा नहीं। वो भी वही झगड़ा है कि तेरी रोड साफ, तेरे घर इतना बड़ा है, तेरी आगे की रोड ज्यादा साफ होती है, मेरा तो इतना सही घर है, मैं क्यों ज्यादा पैसा दूंगा। इट इज सेम थिंग। वो बोलेगा मेरा तो 1200 स्क्वायर फीट का है, इसका जो है 800 स्क्वायर फीट का है, मेरा 600 स्क्वायर फीट का है, सबकी मेंटेनेंस अलग अलग होगी, क्यों होगी मेरी ज्यादा, राइट? ये तो होता है ना। यही सेम ही चीज है, वहाँ की मेंटेनेंस अलग चीज तरह से होती है, ये मेंटेनेंस अलग है। सो फिर सोसाइटी में फिर पॉलिटिक्स होगी, ग्रुप बनेंगे, होता है कि नहीं होता है? तो हम इसको फिर कैसे होगा, फिर कोई एक सेक्रेटरी होगा या जो होगा जिसकी सब बात सुनते हैं, तो वो कॉम्प्रोमाइज कराएगा, रिकंसिलिएशन कराएगा। अगर पॉलिटिक्स का वो एस्पेक्ट होगा ही नहीं तो सब के सर फूटे हुए मिलेंगे। सब एक दूसरे का सर तोड़ के बैठे होंगे, बस पुलिस ही आके काम करे। तो क्यों, व्हाई दिस सोसाइटी एक्ट वाज पास्ड बाय द गवर्नमेंट? बिकॉज सोसाइटी, और में सोसाइटी एक्ट है ना, रजिस्टर करनी पड़ती है सोसाइटी उसमें। क्यों बना हुआ है? उन्हें पता है कि ये लड़ेंगे आपस में फिर, तो इसीलिए जरूरी है पॉलिटिक्स। इसीलिए कहाँ से शुरू हो रही है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ठीक है? एंड ऑल्सो बिकॉज until unless we deliberate, हम लोग एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो हमारे अंदर वो विजडम जनरेट नहीं होगी। मैं क्यों बोलता हूँ कि क्लास में बोला करो आप लोग, क्योंकि हम बोलेंगे नहीं, इसका मतलब हम कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। हम तो बैठे हैं क्लास में, आज जो सुन जाएंगे इधर से सुनेंगे,
इधर तक यहाँ डाल लेते हैं, कुछ बच गया तो ठीक है, नहीं तो ठीक, बिकॉज थॉट प्रोसेस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम लर्निंग. थिंकिंग इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम लर्निंग. यू हैव टू थिंक ऑन दिस एस्पेक्ट्स. अभी इसमें और थोड़ा डिटेल में धीरे धीरे जब कूदेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि सोचना कितना जरूरी है, जो हमने आज तक 20 साल तक किया ही नहीं था कभी. हम तो रटने में लगे हुए थे. पीरियोडिक टेबल रटा रहे हैं कभी. कितने साइंस के कितने स्टूडेंट्स हैं? साइंस का कौन कौन है? मत पूछो पीरियड. कभी साइन थीटा, tan थीटा, cos थीटा कभी रटा दिया, कभी कुछ और रटा दिया. बट वो तो कभी काम आ ही नहीं रहा. मैं हो गया इतना साल का हो गया, इंजीनियर. मेरे को तो आज तक कभी काम आया नहीं. और जो काम आ रहा है वो अल्टीमेटली है जो आर्यन ने बोला कि मेंटल पीस चाहिए. सत्य तो वही है. सत्य सबका एक है. अब हम दोबारा वही पॉइंट पे आते हैं कि सत्य की बात चल रही थी, तो सत्य तो सबका एक होगा ना. बोलते हैं ना सबका मालिक एक है. जहां पे भी एक की बात आ जाएगी, इसका मतलब सत्य तो वही है. अब वो सत्य है क्या, वो हमको ढूंढना है. हो क्योंकि रियलिटी कभी चेंज नहीं होती है. जो सच है वो सच ही रहेगा ना. वो चेंज होगा क्या? अगर वो चेंज हो गया तो वो सच नहीं है. Correct? तो क्या सच है वो हम देखेंगे अभी जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे ना हम, कि व्हाट इज रियलिटी. कितना टाइम हो गया? टाइम है. बहुत टाइम है. अगर 7:30 को है. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. अभी इसको शुरू करते हैं, फिर लेट अस कंटिन्यू विद आवर, है ना. So what Aryan has seen so far is the politics is not a science but an art. Bismarck ने भी बोला था. Okay, that we have seen. अब उसके बाद ये जो व्यू है ना हमारा, politics as an art of government, this is the most traditional view of understanding politics. Why? Because यहाँ पे मैंने आपको बोला था we see it as an institution. This is a restrictive view. आपका जो सोच थी ना अभी तक, वो बहुत restrictive view है. Why? Because हम सोचते हैं कि पॉलिटिक्स जो है कहाँ पे होती है? लेजिस्लेटिव में, चैम्बर्स में पॉलिटिशियंस करते हैं, लॉबिस्ट करते हैं, सिविल सर्वेंट्स करते हैं. यही हमारा व्यू था ना, इसीलिए हमने उसको बुरा बोला. यस और नो? बाकी लोग एग्री कर रहे हैं, अभी भी आर्यन डिसएग्री कर रहे हैं. No sir, सर वही समझा रहा हूँ. I am not saying that politics is bad, but the person who do politics in a bad way is bad. फर्स्ट बार में ये बोला था इसमें. चलो, so now you are at our page ना. मान सकते हैं इसको कि नहीं मान सकते? हाँ सर, politics is good. मैंने स्टार्टिंग से किया था. It is also and good, it is also and bad. But I will say कि it is always good only. Because bad तो उसको unwise लोग बना रहे हैं ना. हम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं. बैड तो अनवाइज लोग बना रहे हैं. एक एक्टिविटी को आप अनवाइज लोग गलत बना रहे हैं, बट वो एज एन एक्टिविटी इज गुड. अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स. डिफरेंस है. पॉलिटिक्स को आप एक ऐसे मानो कि ये एक एक्टिविटी है. इस एक्टिविटी से क्या हो रहा है? आप और हम, वी आर, यू एंड मी आर डूइंग संवाद, कम्युनिकेशन. यू एंड मी आर डेलिब्रेटिंग. दिस इज एन एक्टिविटी व्हाट वी आर डूइंग. इसमें क्या कर रहे हैं? आपका सोचने की क्षमता बढ़ रही है. बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? तो ये अच्छी चीज हुई ना. ये एज ए एक्टिविटी अच्छी चीज हुई. अब इसमें ये पांडुरंग खुराफाती है ना. सपोज एग्जांपल. तो पांडुरंग क्या करेगा? पांडुरंग पीछे से पॉलिटिक्स करके बोलेगा छोड़ो क्या चल रहा है. आर्यन को बरगलाएगा, है ना. राइट. तो बहुत से लोग बरगलाएंगे. बट थिंग इज कि एज ए एक्टिविटी व्हाट वी आर डूइंग, इट्स अ गुड एक्टिविटी. बिकॉज हम कम्युनिकेट कर रहे हैं. जिन चीजों पे हमने कभी सोचना भी जरूरी नहीं समझा था, उन चीजों पे हम सोच रहे हैं. राइट. तो एज ए एक्टिविटी इट इज गुड बिकॉज इट इज हमारे अंदर की सोचने की क्षमता को बढ़ा रही है. आपको क्या लगता है कि हम कुछ भी नया सोचने की कोशिश करते हैं, डेलिब्रेट करते हैं, तो ऑब्वियसली किसी की क्षमताएं बढ़ रही है ना. तो दिस इज
द इम्पोर्टेंट थिंग, और दिस हैज बीन सेड बाय मेनी, मे बी इट इज, हम जो थिंकर्स हमने पढ़े थे, जेएस मिल ने बोला, रूसो ने बोला, ओके, सो दे हैव थिंक कि भाई बोलना बहुत जरूरी है, डेलिब्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पॉलिटिक्स। आप शांत रहोगे, डेमोक्रेसी थ्राइव कर पाएगी क्या? नहीं कर पाएगी ना। तो पॉलिटिक्स गलत है ये तो बोल ही नहीं सकते, पॉलिटिक्स तो अच्छी है। किसी एक एक्टिविटी को आप गलत तरीके से करोगे, किसकी प्रॉब्लम है? सो पॉलिटिक्स एज ए एक्टिविटी, एज ए प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, देयर इज, ये खाली मनुष्य का जीवन बेहतर करने के लिए, ये मेरा मतलब था। ये वही है वो, जैसे टेक्नोलॉजी इज गुड और बैड, इट इज डिपेंडेंट ऑन एन इंडिविजुअल हाउ ही यूज इट। ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी का भी आप कैसे यूज कर, वो बहुत मैटर करेगी चीज़ है ना। बट टेक्नोलॉजी इज वेरी स्ट्रेट जैकेटेड थिंग, पॉलिटिक्स इज समथिंग जो खुल के कुछ भी बोलने का, ऐसा नहीं कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं बोलने का लेकिन काम की चीज बोल लेंगे, ठीक है। जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो वही चीज डिस्कस कर लेते हैं, ओके। सो नाउ एसेंशियली हम लोग इसको कंसीडर करते हैं कि दिस इज अ स्टेट एक्टिविटी, ओके। बट व्हाट अबाउट टेररिज्म? आपने देखा सिलेबस में ये सब चीजें हैं, इंटरनेशनल एमएनसीज, टीएनसीज, ट्रांसनेशनल एक्टर्स, रोल ऑफ एनजीओ, रोल ऑफ मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस, डब्ल्यूटीओ, यूनाइटेड नेशंस। ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि पॉलिटिक्स का पार्ट है। बट हमने कभी इस तरीके से चीजों को समझने की कोशिश नहीं करी, ठीक है। और दिस व्यू इज फर्दर रेस्ट्रिक्टेड एज पॉलिटिकल पार्टीज, है ना, पॉलिटिशियंस एज पावर सीकिंग हिपोक्राइट्स। So this is our view कि always politicians are power seeking hypocrites, okay. So this is the view which is created by politics. So when we consider it only as a art of government, कूटनीति की तरह से जब देखते हैं ना, तभी हम उसको गलत तरीके से इसको इंटरप्रेट करते हैं। एज ए पब्लिक अफेयर, ओके। सो पॉलिटिक्स एज ए पब्लिक अफेयर हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब आप देखिए कि ये जो है ना, इसका ट्रेडिशन जाता है एरिस्टोटल से। नोबल एक्टिविटी, मैं आपको एक्टिविटी बार बार बोल रहा था, राइट। सो दिस इज ए नोबल एक्टिविटी बिकॉज इट एनकम्पासेस द एंटायर गैमट ऑफ लाइफ, एंड दैट्स व्हाई एरिस्टोटल हैज कॉल्ड इट एज अ मास्टर साइंस, और मैन एज अ पॉलिटिकल एनिमल। मैन बाय नेचर इज अ पॉलिटिकल एनिमल, और इस पे हम बहुत डिस्कस करेंगे कि मैन बाय नेचर पॉलिटिकल एनिमल क्यों है, ठीक है। चलिए, सेम दिस व्यू हैज आल्सो बीन एंडोर्स्ड बाय हन्ना अरेंडेंट, बिकॉज हन्ना अरेंडेंट से कि पॉलिटिक्स में सब लोगों को मिलके काम करना है, कंसर्ट में काम करना है, सब लोग मिलके काम करेंगे तभी वो पॉलिटिक्स अच्छे से काम करेगी, ठीक है। तो ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो डेलिब्रेशन, डिस्कशन, थॉट प्रोसेस, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेसी को कैसे फंक्शन करना है, स्टेट को कैसे फंक्शन करना चाहिए, व्हाट इज एन आइडियल फॉर्म ऑफ स्टेट, एक आइडियल स्टेट कैसा होना चाहिए। आज तक कभी आपने सोचा कि एक आइडियल स्टेट कैसा होना चाहिए, या स्टेट का क्या काम होना चाहिए, राज्य का क्या काम है, या राज्य जरूरी भी है क्या हमारे लिए? सबसे पहले तो यही जरूरी नहीं है तो उठा के फेंक दो उसको, क्या करना है, जरूरी है क्या? पहले तो मुझे ये सुनने को मिलता था कि अरे सर हमको कभी जरूरत ही नहीं पड़ती, हम तो अपनी नौकरी करेंगे आराम से, अपना खाएंगे पिएंगे, हमें स्टेट की क्या जरूरत है। सर स्टेट होने के बाद, बॉर्डर होने के बाद भी इतना झगड़ा हो रहा है, नहीं रहेगा तो बॉर्डर मतलब बॉर्डर बहुत जरूरी है, नेशन स्टेट्स, राइट। तो बॉर्डर्स बहुत जरूरी है। एक चीज हो गई, उनमें भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, अगर नहीं रहता तो सोचो क्या होता। सो स्टेट एंश्योर्स आवर सिक्योरिटी, ठीक है। बाउंड्रीज की बात नहीं कर रहे बट और भी बातें कर रहे हैं, है ना। डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट है, क्या है, इसी के लिए है ना, प्रोटेक्शन के लिए है। तो ऐसे बहुत सारे एक्ट हैं, ट्रैफिक मोटर व्हीकल्स एक्ट है, किसके लिए? हमारे प्रोटेक्शन के लिए तो है। तो वही तो मैं बता रहा हूँ, एज ए एक्टिविटी इसमें क्या खराबी है बताओ जरा। क्योंकि माँ बाप उस चीज को
या हमारे घर वाले उस चीज को उस तरीके से कभी देखते ही नहीं है या समझा ही नहीं गया है। हम क्या देखते हैं, जो मीडिया में दिखाया जा रहा है, करप्शन दिखाया जा रहा है, ब्यूरोक्रेसी में करप्शन दिखाया जा रहा है, उसी को हम समझते हैं, which is actually not the thing. So हमारे मन में जो परसेप्शन था वो थोड़ा सा दूर करना है हमको, ठीक है। सो पब्लिक अफेयर में मैंने आपको रूसो एंड जेएस मिल का नाम बताया था, नाम अभी याद नहीं करने हैं, ये सब अपने आप हो जाएंगे धीरे धीरे। एंड आई ऑल्सो डोंट वांट टू डिस्कस, बस है तो मतलब थोड़ा सा बोल रहा हूँ, सो दैट यू शुड ऑल्सो नो कि ये आपके सिलेबस का भी पार्ट है, स्लोली विल कम टू नो, बट ऑल दिस विल बी डिस्कस्ड टू मच ऑफ द डिटेल्स। सो पॉलिटिक्स एज कॉम्प्रोमाइज एंड कंसेंसस जब देखते हैं तो पॉलिटिक्स एज ए मींस ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट बाय कॉम्प्रोमाइज, कंसिलिएशन एंड नेगोशिएशन, ठीक है। नेगोशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देखो इजराइल और ईरान का वॉर चल रहा है, सब लोग बोल रहे हैं कि जो है भाई ये कर लो, अपना नेगोशिएशंस कर लो, नहीं समझ में आ रही बात, क्या करेंगे, कर रहे हैं। तो पॉलिटिक्स को वो इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, पॉलिटिक्स को नहीं दे रहे, अब इसीलिए ये हो रहा है। सो पॉलिटिक्स को हमको एज ए एक्टिविटी देखना है। एक चीज हमको क्लियर हुई आज, पॉलिटिक्स इज एन एक्टिविटी फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। समझ रहे हो बात को? वो चश्मा हटाना कि पॉलिटिक्स को गवर्नमेंट की तरह से देखना नहीं। अगर ये डिप्लोमेटिक क्यों बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन बोलता है डिप्लोमेटिक ये करो, इंडिया भी बोल रहा है कि भाई डिप्लोमेसी से इसको हल करो, सब लोग बोल रहे हैं दूर से बैठ के, बिकॉज नोबडी वांट्स वॉर। सी द कंडीशन ऑफ द पीपल रिजाइडिंग ओवर देयर। वर्ल्ड वॉर में आपने देखा था, राइट? यू हैव सीन इन वर्ल्ड वॉर जापान ने क्या किया था मंचूरिया रीजन में, उनके खेल हुआ करते थे, ये इसका कान काट दो, कान काट के कैसा लगता है देखते हैं, फिर उसका एक हाथ काट देते हैं। They were enjoying that pleasure. They were seeking that pleasure on this. Similarly, the Holocaust, Hitler, right? So, अगर आपने पॉलिटिक्स के सही, तो मतलब सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है एक राष्ट्र का, नेशन का एक काम है अपने नागरिकों के चरित्र का निर्माण करना। I am repeating the sentence again. That is the most important role of the state, to ensure the character of the citizens go well. ठीक है? एक अध्यापक का काम क्या है, टीचर का काम क्या है, टीचर का रोल, गुरु का रोल क्यों मतलब इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है? बिकॉज दे आर द की पिलर्स हु विल इंस्टिल द गुड कैरेक्टर्स इन द सिटीजन। ये रोल किसको दिया गया है? ये दिया गया है टीचर्स के पास है, पेरेंट्स के पास है। लेकिन हमारे तो पेरेंट्स खुद ही पॉलिटिक्स में उलझे हुए हैं बिकॉज ऑफ देयर मिसकंसेप्शंस एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स। ओके, सो द रोल ऑफ अ टीचर इज टू इम्पार्ट। मेरा रोल एज ए टीचर ये भी हो सकता है कि मैं आपको वर्ल्डली थिंग्स से एक्वेंट कराऊं, ठीक है? वर्ल्डली थिंग्स आप समझते हो, अभी हम देखेंगे कि सत्य क्या है, उस पर आना है ना। वो क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है क्योंकि लेक्चर वहां से शुरू हुआ था, खत्म तो वहीं करना है और कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर वहीं से होना है। व्हाट इज ट्रुथ, व्हाट इज रियलिटी, ठीक है? तो so it is better rather than through force and naked power. So politics teaches us negotiations, complacency. पॉलिटिक्स हमको लड़ाई झगड़ा नहीं सिखाती है। लड़ाई झगड़ा तो लड़ाई झगड़ा है, वो तो मानसिकता है, करप्शन तो मानसिकता है। तो हमारे लिए पॉलिटिक्स में क्या क्या एथिक्स भी इंपॉर्टेंट हो गया अभी। कुछ लोग पॉलिटिक्स को कैसे देखते हैं? पॉलिटिक्स एज पावर, शक्ति। कैसे? जो मैंने आपको बताया था, पावर स्ट्रक्चर्ड रिलेशनशिप्स। और आई टर्म न्यू टर्म फॉर यू, पावर स्ट्रक्चर्ड रिलेशनशिप। जो संबंध है हमारे और आपके संबंध है, वो किस पे बेस्ड है? पावर पे, ठीक है? जब क्लास में मैं आता हूँ और कोई सड़क पे दिखता है तो वो पावर स्ट्रक्चर्ड रिलेशनशिप है। जब एनडी के बच्चे हल्ला कर रहे होते हैं, मैं आता हूँ, गुस्सा हो जाता हूँ, यही बच्चे मेरे को बाहर मिलेंगे तो कोई नहीं पूछ रहा, बोले क्यों, आपको क्या दिक्कत है भाई?
Right or wrong? So here it's a power structured relationship. Why? Because I am in a position of power. मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं आपको बोल सकता हूँ कि भाई क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है। यही अगर किसको सुनना पड़ेगा, तुमको ना। हाँ सब ठीक है। लेकिन यही मैं अगर तुमसे नीचे जाके, जब तुम मेरे को नहीं जानते हो, मैं बोलूंगा अरे पांडुरंग क्या कर रहे हो यार, ये गलत है, कौन हो यार, ऐसे नहीं करना है, तो तुम ही मेरे को चढ़ जाओगे, है ना। अभी नहीं, अभी तो कर नहीं सकते, अभी हमारी रिलेशनशिप भी पावर पे बेस्ड है। नहीं, कभी भी नहीं। अच्छा, जब नहीं जानते मेरे को तो है नहीं करते, किसी से लड़ाई नहीं की आज तक जिंदगी में, कभी लड़ाई नहीं हुई। गांधीयन प्रिंसिपल तो फिर तो यार फिर ये भी गड़बड़ है। मार खा के लेते हैं। बिना उसके तो देखो, नहीं मारने वाले का नहीं, मारने का नहीं, वो जो एक अच्छा उनके अंदर जो इंसान है, हमको अच्छा होते होते इतना अच्छा भी नहीं हो जाना है कि हम गलत फायदा होता है। हमारे को, क्योंकि देखो खून तो बहेगा, दुष्ट का बहे या हमारा बहे। महाभारत नहीं होती, रामायण नहीं होती, तो अगर कोई व्यक्ति दुष्ट है तो उसको कोई तो मारेगा। जैसे एनडीए के लेक्चर्स में ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि भाई देखो, मतलब बहुत से लोग बोलते हैं कि यार ये तो मतलब लड़ाई झगड़ा ये सब बुरी चीज़ है ना, वो एक अलग आस्पेक्ट है, जब मैं वो डिस्कस करूँगा तो खाली वही एक बताऊँगा। तो वहाँ पे लोग मेरी बात से पूरी तरह से सहमत हैं कि जितना ज़रूरी ये है कि हम सही रहें, ये बेसिकली आइडियल्स हैं। अगर सब लोग ऐसे हो जाते तो हमको पुलिस की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन सब लोग ऐसे नहीं है ना, हमको खाली प्रयास करते रहना चाहिए। अब जब आप यहाँ की पॉलिटिकल साइंस की क्लास से जाओगे तो आईएएस बनो ना बनो, एक अच्छे नागरिक जरूर बन जाओ, ये मेरा आप लोगों से वादा है। और अगर जिस दिन मैं ये वादे में तुमको लगे कि सर फेल हो गए, यहाँ पे जितने भी नागरिक आपको दिख रहे हैं ना, ये सब मेरे पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपको ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि लाइफ में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। ऑब्वियसली वर्ल्डली थिंग्स हैं, इकोनॉमिक्स है, एस्पिरेशंस है, बट कुछ तो करना है ना लाइफ में। तो वही चीज एक अच्छी चीज करके क्यों नहीं। आई हैव अगेन रिपीटेडली सेड यू कि मैं एक इंजीनियर हूँ, मैंने इतने साल इंजीनियरिंग पढ़ा, बट स्टिल आई एम इन लव विद दिस सब्जेक्ट एंड विद दिस टॉपिक, बिकॉज दिस हैज गिवन मी अ डिफरेंट इनसाइट ऑल टुगेदर कि लाइफ है क्या। ठीक है, तो ट्रुथ जो है वो ढूंढने के लिए हमको यहाँ की दुनिया से अलग जाना पड़ेगा। ओके, और उसके लिए हमको थोड़ी सी फिलॉसफी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो जब नेक्स्ट क्लास में हम लोग आएंगे तो वी विल डिस्कस लिटिल बिट ऑफ फिलॉसफी। व्हाट इज फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र क्या है, ठीक है, सत्य क्या है, हम लोग इस पे जरूर डिस्कस करेंगे। तब तक तुम लोग भी ढूंढ के लाना, कुछ मिल जाए तो, है ना, कुछ तो मिलेगा ना। बट इतना तय है, इतना हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि ट्रुथ वही है जो समय समय पे बदले नहीं, जो एक ही हो। ठीक है, so politics is power. This is the most broadest and most radical concept of power, because power में आपको मैंने बताया था कार्ल मार्क्स का हो गया power structured relationships, who the ये नहीं चल रहा क्या? अच्छा, इसीलिए तुम लोग पीछे बैठे हो ना। तो मेरे को भी बता सकते हो तुम लोग, सर गर्मी है थोड़ा, मैं आगे से ले लेता क्लास। चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर और, लगभग 5-10 मिनट और हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसको, फिर जाएंगे वाइंड अप। सो दिस इज द मोस्ट रेडिकल व्यू। क्यों? क्योंकि हमको पावर इक्वेशंस में ही पॉलिटिक्स दिखती है। आपने देखा ना, मैंने ब्रॉडेस्ट क्यों बोला, क्योंकि घर से शुरू हो जा रही है।
और पूरा नेशन स्टेट और पूरे में दिख रही है, सब में पावर पॉलिटिक्स दिख रही है। यूएस उसको दबा रहा है, ऊपर अगर देखें टॉप उसमें तो, है ना। तो एनवायरमेंटल इश्यूज में कौन दबा रहे हैं? डेवलप्ड नेशंस, डेवलपिंग नेशंस को दबा रहे हैं कि नहीं दबा रहे हैं? करेक्ट। सो दिस इज अगेन पावर स्ट्रक्चर्ड रिलेशनशिप्स। somebody is in the position of power, which is at this point of time the developing nations, developed nations, correct. So again फिर next नीचे लेवल पे आ जाएं तो आपको बताया कि जो सोशली इकोनॉमिकली सोशली एफ्लुएंट क्लास है, ब्राह्मण्स, अगेन ठीक है। तो ब्राह्मणिकल स्ट्रक्चर, अगेन अ डोमिनेटिंग पोजीशन, अ डोमिनेटिंग क्लास सबड्यूइंग द अदर क्लास, again power structured relationships. Family, power structured relationship, husband wife relationship, father daughter relationship, father son relationship, again a power structured relationship. और businessman और workers की rent, tenant, किराएदार को बोलते हैं ना कल खाली कर देना गुरु, कल खाली कर देना, नोटिस दे दे रहा हूँ मैं जल्दी से। तब आप बोलोगे भी कि नहीं अरे सर हमको थोड़ी जरूरत है, नहीं कुछ नहीं खाली कर दो, बस हो गया। ये पावर स्ट्रक्चर्ड रिलेशनशिप में हो। इसीलिए तो टेनेंसी एक्ट भी है, आने की बात चल रही है, पता है ना, होगा भी शायद, मुझे पता नहीं है, बट ये सब हर चीज को लेके गवर्नमेंट ने या स्टेट ने सोचा हुआ है, या पॉलिटिक्स में हम लोग हर चीज को सोचते हैं। कोई ऐसे किसी को ना निकाल दे अचानक से अगले दिन, कोई 20 साल से रह रहा है, 20 साल से अचानक से बोलो तो भाई चले जाओ, नहीं चलेगा, है ना। तो ये सब चीजें हैं। So politics takes place at every level of social interaction, that is among families, friends, small groups, just as amongst nations and on the global stage. So this is the most broadest view and most radical view. So Harold Laswell की एक बुक थी, अभी धीरे धीरे नाम आ जाएंगे, मैं नाम एक्चुअली बताना नहीं चाहता हूँ ज़्यादा। So उनकी एक बुक थी पॉलिटिक्स में, who gets what, when and how, किसको क्या मिलता है, कब मिलता है, कैसे मिलता है, that is politics। जब हम पढ़ेंगे ना पावर का कंसेप्ट, तो उसमें देखेंगे कि पावर को कैसे कैसे लोगों ने डिसाइड किया है, डिफाइन किया। सो पॉलिटिक्स इज पावर स्ट्रक्चर्ड रिलेशनशिप्स। ओके, सो विद दिस और भी कुछ है तो कर देते हैं, नहीं तो फिर हम इसको करेंगे। ठीक है, अब कुछ सिलेबस आपको क्लियर हो गया? Yes. सत्य की खोज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, उसको खत्म भी करेंगे। ठीक है, व्हाट इज ट्रुथ, नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस प्लेटो आल्सो, वी हैव टू डिस्कस व्हाई नॉलेज इज इम्पोर्टेंट, व्हाई नॉलेज इज वर्च्यू, वर्च्यू क्या होती है, वैल्यूज क्या होती हैं। ओके, एक मैंने अब हम बात कर रहे थे तो मैंने बताया था ना अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज, बताया था मैंने उनको। अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज, वैल्यूज से आप लोग क्या समझ रहे हैं यहाँ पे? कोई चीज जो हमारे लिए वैल्यू रखती है, ऐसी कोई चीज होगी ना ये जिसका हमको एलोकेशन करना है। पॉलिटिक्स को हमको कुछ एलोकेशन करना है ना, तो किसी चीज को हम वैल्यू करते होंगे, उसमें कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती हैं कि अथॉरिटेटिव एलोकेशन, जॉब को लेके, जॉब भी वैल्यूएबल है ना आपके लिए, तो एलोकेशन कैसे होगा उसका? भाई ऐसा है, ओबीसी होगा तो 27% मिलेगा, एससी होगा तो इतने परसेंट मिलेगा, एसटी होगा तो इतने परसेंट मिलेगा, वुमेन होंगी तो पंचायत में इतनी सीट उनको मिलेंगी। पंचायत में यहाँ भी है ना, महाराष्ट्र में सब जगह हम लोग के पंचायत में 33% रिजर्वेशन हो गया। सो नाउ दिस 33% रिजर्वेशन, व्हाट इज दिस? दिस इज द एलोकेशन ऑफ वैल्यूज। खाली वैल्यूज और भी होती हैं, ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया बिकॉज यू कैन डायरेक्टली रिलेट टू इट। जॉब हो गया, अपॉर्चुनिटीज हो गई, ओके। देन आपका व्हाट वी कंसीडर इट वैल्यूएबल इज द टाइम हो गया, चलो। सो व्हाट इज वैल्यूएबल? इट इज सर्टेन वैल्यूज, जैसे कि जस्टिस है,
जस्टिस मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? दीज आर मोस्ट वैल्यूएबल, जिसको हम समझते नहीं हैं आज तक। अब हम इसको समझेंगे। इक्वालिटी, इजंट इट वैल्यूएबल? सारी लड़ाई की जड़ ही ये सब चीजें हैं। जस्टिस, इक्वालिटी, व्हाट इज मीन बाय जस्टिस, एक एक करके सारी चीज समझेंगे कि जस्टिस का मतलब क्या है, क्या होता क्या है जस्टिस। कोर्ट में जो होता है वो जस्टिस नहीं है, दैट इज नॉट द, दैट इज ओनली अगेन अ नैरो व्यू ऑफ जस्टिस। ठीक है, तो इक्वालिटी क्या होती, इक्वालिटी कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वालिटी कैसे इंश्योर करेंगे। सो ऑल दीज आर द वैल्यूएबल गुड्स, ओके, फॉर द सोसाइटी। चलो, थैंक यू। बुक्स कौन से है? ये मत पढ़ना, अभी ये नहीं पढ़ना है। बुक्स का यस, आई विल ऑफ कोर्स टेल यू। नेक्स्ट थिंग ऑनवर्ड्स, यू बाय योर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट फ्रॉम ओपी गोवा, ओके। ये बुक नहीं पढ़ना है लोगों को, ये जब बुक पढ़ना होगा तो मैं बता दूंगा। दिस इज ओनली फॉर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट बाय ओपी गोवा। ओपी गोवा, GAUBA। हाँ, ये अच्छा याद रहा है बुक्स। अभी खाली ये बुक ले लो एक। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो बता दूंगा, ठीक है। सारी बुक लिस्ट एक साथ कहीं भी देख लो, मिल जाएगी, बट आई डोंट वांट, यस, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट बाय ओपी गोवा, ओके। सो ऑल ऑफ यू कम विद द बुक नेक्स्ट टाइम, ठीक है। Thank you, sir. थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर योर पेशेंस, काइंड हियरिंग। और कौन कौन बचा है? सब एग्जाम स्टार्ट हो गए। हाँ हाँ, वो